इसका क्या मतलब है कैरेक्टराइज स्ट्रक्चर? अब सही ध्यान से करना है। चौथा जो कैसे जरब और ये करते जाए, पास जवाब आ जाए। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड सेकंड पॉइंट सेज लेट्स सपोज वी हैव scheduled the first activity, so we are left with a set A dash. We have scheduled first activity, so we are left with n minus 1 activities which we are calling as A dash set. So as we have scheduled the first activity using a greedy choice, so we can schedule the remaining activities again with the set A dash using the same greedy choice. So जब हमने पहली एक्टिविटी को ग्रीडी चॉइस के थ्रू स्केड्यूल कर लिया, तो रिमेनिंग एक्टिविटी में से अगेन वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जो हमने पहले ए सेट के साथ रिपीट किया था. So this property is exploited by both the greedy algorithms and the dynamic program. जी बच्चों, ठीक है? यहां तक को क्वेश्चन? करो नींदें पूरी सारे. A thief has a knapsack that holds at most W pounds. Item I is VIWI. So knapsack problem किसी को याद हो? What is knapsack problem? जल्दी जल्दी क्विकली. क्या है knapsack? knapsack में हमने ज्यादा से ज्यादा वेट को जो है वो एक बैग के अंदर मतलब फिल करना होता है. वेट भी ज्यादा से ज्यादा और हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए. नहीं, उसकी वैल्यू ज्यादा लेनी. Exactly. This is what is ऑब्जेक्ट भी ज्यादा से ज्यादा जी, दिस इज व्हाट इज चैलेंजिंग कि आपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी पिक करने हैं और ये भी मेक श्योर करना है आपने कि जो ऑब्जेक्ट्स आप पिक कर रहे हैं उनकी वर्थ भी ज्यादा हो. सो दिस इज व्हाट मेक्स इट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो वी हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंस्ट्रेंट्स. So a thief has a knapsack that holds at most W pounds. इतना वेट कैरी कर सकता है वो knapsack और बैग कह लें आप, सिंपल वर्ड्स. और एक आइटम I को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, VI WI. WI उसका वेट रिप्रेजेंट कर रहा है और VI उस आइटम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. And this is not necessary. If an item has more weight, it has a more value. This is possible. A least weight item could have a more value than an item with the highest weight.
So thief must choose items to maximize the value stolen and still fit into the knapsack. Each item must be taken or left. This is a 0-1 choice. क्या उसने आइटम को पिक करना है या छोड़ना? सो हमने बैग को भी पूरी तरह से फिल करने की कोशिश करनी है और ये भी कोशिश करनी है उस बैग में जो आइटम्स हो उनकी वर्थ सबसे ज्यादा हो हमारे पास. So the setup is same as 0-1 knapsack, but the thief can take. This is a fractional knapsack problem, जिसमें आपके पास आइटम जो हैं वो आपस में डिविजिबल हैं, उनका पोर्शन भी पिक कर सकते हैं. This is known as fractional knapsack problem. So same as 0-1 knapsack, but the thief can take fractions of items rather than having to make a binary choice 0-1 for each other. So you can take 0.5 of some item, 0.7 of some item, rather than 0 or 1 taking or leaving the item. Clear है बात? Yes, sir. Right. So both the 0-1 and the fractional problems have the optimal substructure property. So fraction is VI is the value per pound. Clearly you can take as much of the item with the greatest value per pound. तो अगर आप फ्रैक्शनल को देखें तो उसमें तो आप पर पाउंड की वैल्यू निकाल सकते हैं. आइटम की VI by WI करेंगे तो आपकी वैल्यू पर पाउंड निकल आएगी कितनी वर्थ है उसकी. So clearly you can take as much of the item with the greatest value per pound. So जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसको आप उस पाउंड के हिसाब से पर पाउंड वर्थ के हिसाब से आप उतने पाउंड पिक कर लें उसको. So this continues until you fill the knapsack. So optimal greedy algorithm takes again the same ON log and time for sorting, as we must sort on VI by WI equal to DI. इसे हम DI factor यहाँ पे कह रहे हैं. क्लियर है यहाँ तक बात? So this is about the fractional knapsack, जिसमें आप पर पाउंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उस पर पाउंड की बेस पे आप उसको सॉर्ट कर लेंगे. ये चले आगे. Yes, sir. Okay. So this is a maximum knapsack capacity. So we have a W50 pounds knapsack or a bag which we have to pick these items. Now we have 3 items and the overall weight of these items is 60 pounds. With W1 10 pounds, W2 20 pounds, and W3 30 pounds. The value of the first item is whatever the 60, whatever the currency is 60, and W2 is 100 and W3 is 120. So if we find the value density of each of these items, which is the D factor. So the value density of the first item is 6. 60 by 10 is 6, 100 by 20 is 5, and third one 120 by 30 is 4. So first one has the highest value density. So we can take all of 1 and all of 2, V1 plus V2. So ये आपके पास आ गया 160 वैल्यू आ गई और ये पाउंड आपके पास हो गए 30. ले रहे हैं यहाँ तक बात. आप इसमें से चूंकि हमारे पास फ्रैक्शनल लैब्स है कि आप पोर्शन पिक कर सकते हैं. तो चूंकि हमें 50 पूरा करना है और हाईएस्ट जो वर्थ है वो पहले 2 आइटम्स की है, तो हम वो तो पूरा हमारे पास बैग में 30 पाउंड आ सकते हैं. सो रिमेनिंग रह गया W3. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज टू टेक ऑल ऑफ 2 and 3 और उनकी जो वर्थ है वो हमारे पास ओवरऑल 220 बन जाएगी. अदर सॉल्यूशन इज टू टेक ऑल ऑफ 1 and 3. सो V1 plus V3 is 180, all below 50 pounds. ये सारी हमारी जो choices हैं ये 50 pounds and below choices हैं. So okay, sorry, ये Sir, 2 और 3 हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है. 2 और 3 तो दे रही है. इसने सॉल्व मेरा ख्याल है इसके लिए किया है. राइट. इसने 0-1 knapsack किया है लेकिन वैल्यू डेंसिटी इसने निकाली है और उसकी बेस पे उसने ये देखा है कि हम पहले 2 आइटम पिक कर सकते हैं. अगर पहले 2 आइटम पिक करें वर्थ की बेस पे, वैल्यू डेंसिटी की बेस पे,
तो फिर हम W आइटम 1 और आइटम 2 ही लेके जा सकते हैं जिनकी वर्थ फिर 160 बने, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो इसका तब बनता है जब हम V2 और V3 लेके जाएं, उसमें हमारे पास वर्थ बनेगी उसकी 220। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जी क्लियर हो गया बात आप सबको? यस सर। ओके सर ये तो हम इसकी वैल्यूज की बेस पे कर रहे हैं ना, लेकिन डेंसिटी का फिर इसमें क्या है, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डेंसिटी वर्थ निकाल रहे हैं ना बच्चे, पर पाउंड वर्थ निकाल रहे हैं कितनी है। और ये डेंसिटी की बेस पे ही ग्रीडी चॉइस ली गई है। डेंसिटी ठीक है सबसे सर। हाईएस्ट 6 है, तो हमने पहला आइटम पिक कर लिया। डेंसिटी सेकंड पे 5 हाई, सेकंड हाईएस्ट 5 है, तो हमने सेकंड आइटम पिक कर लिया। तो जिनकी डेंसिटी हाई थी उस पे ग्रीडी चॉइस ली, तो हमारे पास ओवरऑल वर्थ जो हम बैग के अंदर लेके जा सकते हैं उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 160। सर अगर हम वैल्यू की बेस अगर पे हम जी अगर सर हम वैल्यू की बेस पे करें फिर तो 2 और 3 की वो हाईएस्ट बन रही है ना, अगर डेंसिटी की बेस कहाँ से पे करें हाईएस्ट तो बन फिर रही 1 है? और 2 की D1 और D2 देखना है किसका हाईएस्ट है। डी चॉइस देखे ना, 6 और 5 आ रही है पहले दो आइटम्स के केस में, थर्ड पे नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी पिक आइटम 1 एंड आइटम 2 बेस्ड ऑन ग्रीडी चॉइस। सो 160 बन जाएगी आपके पास। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो इसका तब बनता है जब आप W2 और W3 को पिक करें। आल्दो उनकी वैल्यू डेंसिटी कम है, बट नैपसैक के केस में उनकी कॉस्ट ज्यादा बनती है, 220 बनती है। Another good solution is 180, जिसमें आप V1 और V3 को पिक करें। Still, this is better than the greedy approach. Clear? Yes, sir. यस Okay. When solving the 0-1 knapsack problem, empty space loads the effective D of the load. Thus, each time an item is chosen for inclusion, we must consider both I included and excluded. So these are clearly overlapping sub-problems for different I's and so best solved by dynamic programming. जी यहाँ तक क्वेश्चन? So greedy strategy doesn't work for 0-1 knapsack problems. अभी भी हमने देखा, अगर हम वर्थ की बेस पे जैसे भी हम सॉर्ट कर रहे थे तो 50 का हमने knapsack बनाना था और ये हमारे पास इनकी वैल्यू डेंसिटी थी 6, 5 एंड 4। और जब हमने इनको प्लेस किया, अगर हम इसको जो मिडिल चॉइस है वो हमारी ग्रीडी चॉइस थी जिसमें हमने उसकी वैल्यू डेंसिटी की बेस पे प्लेस किया, तो हमारे पास 160 सॉल्यूशन निकला। Otherwise, we had other two possible solutions that were better than the greedy choice, and first one was the optimal one in which we can carry item 2 and item 3. So fractional knapsack problems are definitely solvable by greedy algorithms, but 0-1 knapsack problems are not suitable to be solved with the greedy algorithm. Again, the greedy strategy doesn't work for the 0-1 knapsack problems. Okay, another problem that can be solved using greedy choice is variable length prefix encoding algorithm to compress the characters. Assign variable Huffman encoding याद है सबको? पढ़ी होगी आपने पहले डेटा स्ट्रक्चर। पढ़ी नहीं थी या याद नहीं है? सर दोनों चीजें नहीं याद। ये भी नहीं आपकी पढ़ी हुई थी कि नहीं पढ़ी थी? अच्छा जी, हफमैन कोडिंग में हम एक ट्री, आप कह लें एक ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टू बी ट्रांसफर्ड और टू बी यूज्ड। अभी हम एनकोडिंग कैसे करते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब हम ये एनकोडिंग करें तो इसका जो साइज है वो कम से कम बने, इस एनकोडिंग का साइज हमारे पास सबसे कम बने। तो इन order to execute this encoding, we use again the greedy algorithm. So let's suppose we have a pattern
example is A, B, A, A, F, or some variable length pattern 0101, somehow this can change, or a fixed length pattern for all the string, the pattern is same. So frequently used characters have short code words, so this can save space. This is the only key point in Huffman coding. The characters that are used frequently should have the short codes. Let's suppose this is a string A, B, C, D, E, F, and in this, there is a string in which there are these 6 characters A, B, C, D, E, F, and these are repeated with the frequencies 45, 13, 12, 16, 9, and 5. So one of the strategy could be that we use a fixed length encoding. So maybe you use 3 bits to represent a character. So for A maybe 000, for B maybe 001, and for C 010, similarly 011, 100, and 101. Other possible choice could be to use a variable length coding, which is normally done by in the case of Huffman coding. So we use 0 for A, we use 101 for B, 100 for C, similarly 111 for D, 4 bits for E, and again 4 bits for C. Now you can see this is a variable length encoding. So in case of variable length, what motivates to use the least length or the most length is the frequency. So A has the highest frequency, so we should use the least length code for this character. On the other hand, we can see F has the least frequency, so we can use the maximum length coding for F, which is a 4 bits in this case. Clear? Yes, sir. Okay. सर ये एफ वाली बात अगेन समझा दें जरा। कौन सी वाली बात? सॉरी, एफ जी आखिरी पॉइंट मैंने ये कहा है आपको, हफमैन कोडिंग के केस में या वेरिएबल लेंथ कोडिंग के केस में हम जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको शॉर्ट कोड देने की कोशिश करेंगे। देखें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, उसको अगर शॉर्ट कोड देंगे तो ओवरऑल जो कोडेड स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपकी कम हो जाएगी, और जो कम टाइम रिपीट हो रहा है उसको आप लेंथियर कोड भी दे सकते हैं क्योंकि उसने कम टाइम आ। लेकिन अदरवाइज जैसे यहाँ पे ए जो है वो 45 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने उसको सिंगल बिट कोड दिया। ऑन द अदर हैंड एफ जो है वो जस्ट 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने उसको 4 लेंथ कोड दे दिया। सो दिस वुड अगेन रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ओवरऑल स्ट्रिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको रिवर्स कर देते, ए को आप एक लेंथियर कोड दे देते 4 लेंथ का और एफ को आप एक शॉर्टर कोड दे देते 0 लेंथ का, तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो रादर देन रिड्यूसिंग, ये कंप्रेस होने के बजाय ये एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। 45 टाइम्स ए जो है वो आपके पास अभी अगर हम इस टेबल के अंदर देखें तो ये ए जितनी दफा आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बिट आएगी। सो 40 ए जो है वो 45 ओवरऑल ए की जो 45 टाइम्स अकरेंस है वो 45 बिट से रिप्लेस हो। अगर हम इसको 4 लेंथ में कन्वर्ट कर देते तो ये 180 टाइम्स 180 बिट से रिप्लेस होता है। क्लियर हुई बात? यस सर। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना शॉर्टर कोड देने की कोशिश करेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसको हम लेंथियर कोड भी दे सकते हैं। देना लाजमी नहीं है, अगर मजबूरी है तो हम उसको लेंथियर कोड भी दे सकते हैं। अगर शॉर्ट दे सकें तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट में जब हमारे पास
चॉइस लेनी हो हमें शॉर्टर के लिए कि हमें शॉर्टर किसको देना है, तो उसको देने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा टाइम स्पीड हो। सो नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर कोड वर्ड। तो कोई किसी का प्रीफिक्स नहीं है, हर कोड दूसरे कोड से इंडिपेंडेंट है। सो लेट फॉर एग्जांपल सिंपल इन कोड एंड डिकोड कैसे वर्क करेगा। लेट्स सपोज यू हैव कोड्स जो कि मे बी लास्ट उसने स्लाइड से आपको शो किए। सो आपके पास EEFA आपने ट्रांसफर करना है, तो आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग E का जो कोड होगा वो शायद उसने लास्ट में दिया होगा 1101। सो 2 दफा 1101 डल गया, उसके बाद F का कोड 1100 डल गया और A का कोड 0 डल गया। ये आपने ट्रांसफर कर दिया। दूसरी साइड पे जब पहुंचा तो उसने इसी तरह से आपकी बिट स्ट्रिंग को देखना है। सबसे पहले उसने रीड करना स्टार्ट किया, 1101 को रीड किया, उसने E से रिप्लेस कर दिया, फिर अगले 1101 को रीड किया, फिर E से रिप्लेस कर दिया, फिर 1100 को रीड किया, F से रिप्लेस किया और फिर फाइनली 0 को A से रिप्लेस करके। तो ये आपकी जो इनकोडिंग हुई थी पहले वो फिर इसी तरह से दूसरे एंड पे डिकोडिंग हो जाएगी। So how greedy algorithm works for Huffman coding? So we make a Huffman code tree. So इसमें आप सबसे पहले let's suppose you represent each character or each element of the string with its frequency. So F आपके पास 5 टाइम आ रहा है, E 9 टाइम्स आ रहा है, C 12 टाइम आ रहा है, B 13 टाइम्स है, D 16 टाइम्स है और A 45 टाइम्स है। सो आप इनको सबसे पहले इन सबको इस वे में लिस्ट कर दें। नेक्स्ट स्टेप वुड बी आप इनमें से उन 2 को पिक करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और उनको मर्ज करते हैं, जो आपको नीचे स्टेप 2 में नजर आ रहा है। आपने दोनों को मर्ज किया, मर्ज करने से F और E की जो फ्रीक्वेंसीज हैं एक्चुअली उसको मर्ज करके आपने ऊपर प्लेस कर दिया सर्कुलर एलिमेंट के अंदर और वो आपके पास 14 आ गया। एक ब्रांच को आप 0 लेबल करते हैं, दूसरे को आप 1 लेबल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। फिर आपने यही स्टेप रिपीट करना है फर्दर। फिर आपने नेक्स्ट चॉइस लेनी है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट चॉइस क्या है? अब आपके पास 14 भी इसमें एक एलिमेंट है। अगर 14 लीस्ट होता तो आप 14 को मर्ज करते, लेकिन अभी इस सॉर्टेड लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट चॉइसेस हैं वो 12 और 13 है। सो आप 12 और 13 को फिर इसी तरह से मर्ज कर देंगे तो आपके पास ये 25 आ गया। और इसी तरह से एक साइड पे आप 0 लेबल कर दें, एक साइड पे आप 1 लेबल कर दें। फिर आपके पास जो 2 लीस्ट चॉइसेस हैं उसमें 14 और 16 है। तो आप इन 14 और 16 को मर्ज करेंगे। फिर आप मर्ज होके जो सेंट्रल एलिमेंट है वो आपके पास 30 आ गया। एक साइड पे आप 0 लेबल कर दें, एक साइड पे 1 लेबल कर दें। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। एंड आपके पास इसके बाद फिर आपके पास जो लीस्ट चॉइसेस थी उस पर 25 और 30 था। इन दोनों को आप मर्ज करेंगे, आपके पास सम अप जो है 55 आ जाएगा। एक साइड पे आप 0 लेबल कर देंगे, एक साइड पे आप 1 लेबल कर देंगे। और फिर फाइनली आप इस 55 एक एलिमेंट रह गया और 45 दूसरा एलिमेंट रह गया, इन दोनों को मर्ज करेंगे। अगेन एक साइड पे 0 आप लेबल कर देंगे, दूसरे साइड पे आप 1 लेबल कर देंगे। ये अब आपके पास पूरा हफमैन कोडिंग ट्री बन गया। अब इस कोडिंग ट्री में क्या पता चल रहा है आपको कि ए अगर आप ऊपर से स्टार्ट करें तो ए तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही बिट चाहिए, दैट इज 0। और इसी तरह से अगर लेट्स सपोज आपने सी बनाना है तो सी बनाने के लिए आपको 3 लेंथ का चाहिए है बिट स्ट्रिंग, जो कि अगर आप टॉप से मूव करना शुरू करें तो 100 जो है दैट वुड रिप्रेजेंट सी। सिमिलरली 101 वुड रिप्रेजेंट बी, 1100 वुड रिप्रेजेंट एफ, and 3 times 1 would represent 16, 2 times 0, then 01 would represent E. Clear हुआ? यस सर। यस सर। So this is a Huffman code और यही कोड है जो उसने स्टार्ट में आपको वेरिएबल लेंथ के थ्रू यहाँ पे शो किया था। ये इस ट्री के थ्रू बना है कोड। जब इसी तरह से आपके पास बिट स्ट्रिंग वापस आएगी, कहीं से एक बिट स्ट्रिंग आती है, जैसे ये हम कह रहे थे हमारे पास बिट स्ट्रिंग फॉरवर्ड हुई है,
यही बिट स्ट्रिंग हम इस ट्री को पार्स करेंगे इस ट्री के थ्रू, और जो जो कैरेक्टर बनता जाएगा उसको साइड करते चलेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक कोड आता है 0 में भी 01100, तो आप पहला 0 इसमें से लेके आएंगे, पहला 0 पास करेंगे, फॉर्म करेगा A। फिर आपके पास था नेक्स्ट 1100, तो आप उसके बाद फिर इसको देंगे 1, फिर वो 1, फिर 0, फिर 0, फिर आपको पता चलेगा नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास F है। सो इट्स AF स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, अब अगर किसी ने चेक कराना है तो 5 मिनट में मैं फिर चेक करूंगा, नहीं तो फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे।